So next chapter is carbohydrate metabolism. Whenever we started about the carbohydrate metabolism, we all know about what is exact metabolism. So metabolism is the total sum of the all life sustaining chemical reactions that occurs within the cells of living organisms. इट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, अभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उस रिएक्शंस की सम्स को, ऑल रिएक्शंस को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म. सो देयर इज मेटाबॉलिज्म हैव अ टू ब्रॉड कैटेगराइज. First one is your catabolism, second one is your anabolism. Both are opposite. Okay, catabolism, it means they break a complex molecule into the simpler one. कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज कैटाबोलिज्म. एंड एनाबोलिज्म इट इज टू सिंथेसाइज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, मतलब has opposite to the catabolism. Okay, so into the metabolism, both the catabolism and anabolism is happen. It means the whole process containing the reactions are breakdown, synthesized a new compound and provide the energy and store, then that is metabolism. In this chapter we see the carbohydrate metabolism. So metabolic functions are below: breathing and blood circulation. अभी इस मेटाबॉलिज्म का हमारे बॉडी से क्या लेना देना है वो हम देखेंगे. तो ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन, इट मीन्स जो कांस्टेंट एनर्जी लग रही है हमारे हार्ट को बीट होने के लिए और लंग्स को फंक्शनिंग रखने के लिए, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दिस बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो ब्रीथिंग and blood circulation is the main function. Second one, cell repair and growth. Third one is the temperature and regulations. Whole body का internal temperature maintain रखना because of the energy, or energy is formed from the metabolism. Then next one is waste removal. Waste removal, it means जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे सेल से या फिर हमारे बॉडी से निकलते हैं वो यूरिया द्वारा बाहर निकाल देना, दैट इज कन्वर्टिंग द टॉक्सिक सब्सटेंस इन लाइक अमोनिया इनटू द यूरिया फॉर एक्सक्रीशन. These all are the metabolic functions of carbohydrate metabolism. First of all, what is the carbohydrate metabolism involves? Okay, so the carbohydrate metabolism involves the biochemical process of synthesis, breakdown, interconversion of the carbohydrate into the living organisms. ओके, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, बायोकेमिकल कुछ प्रोसेस होती है. उस प्रोसेस का पार्ट कैसा रहता है, एक तो कोई तो मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा, कोई मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा या फिर किस मॉलिक्यूल का इंटरकन्वर्जन होगा. यू हैव टू फोकसिंग on the glucose utilization for the energy and storage. Into the carbohydrate metabolism, we have to focus on the glucose utilization. Glucose का utilization होना, या it means उसका energy से utilization होना, energy के लिए उसका utilization होना. It means ATPs and also उसको store करना for the further functioning. That is the work of the carbohydrate metabolisms. The key pathways include what? This is the main part. Okay, हमें next videos में अभी एक एक करके देखने हैं वो pathways. So the carbohydrate metabolism containing some pathways are: first is the glycolysis, then citric acid cycle. Citric acid cycle is Krebs cycle. Okay, then glycogen regulation, then occurring
these all things into the cytoplasm and mitochondria. क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंथेसिस होते, ब्रेक डाउन होते, या फिर उसका इंटर कन्वर्जन हो जाता है फॉर द ग्लाइकोजन और ग्लूकोज. ग्लाइकोजन इट मीन्स ग्लूकोज को अगर हम स्टोर करके रखें लिवर में या फिर मसल्स में, तो उस स्टोरेज को, जो स्टोरेज किया हुआ ग्लूकोज है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम ग्लाइकोजन बोलेंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन के कन्वर्जन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्जन होकर वो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है लीवर में और मसल्स में, और जो रिमेनिंग एनर्जी रहती है वो यूटिलाइज्ड होती है ब्लड स्ट्रीम थ्रू हमारे अदर फंक्शनिंग के लिए. ओके. और इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में सब कीज पाथवेज इन्वॉल्व है. उसमें से स्टार्टिंग पाथवे है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल, देन ग्लाइकोजन रेगुलेशंस, एंड ये तीनों भी जो पाथवेज है वो सारे के सारे पाथवेज साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं. ओके. सो दिस इज द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ओके. Now you know about what is exact metabolism. Metabolism means क्या रहता है. मेटाबॉलिज्म में दो कैटेगरीज है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और दोनों के दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे से. एक कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन करता है, तो एनाबॉलिज्म्स सिंपलर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंथेसिस करता है. फिर उसके हमने फंक्शंस देखे कि ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये मेटाबॉलिज्म, सेल रिपेयर के लिए या फिर सेल ग्रोथ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें ये मेटाबॉलिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है, एंड लास्ट वन इज़ योर वेस्ट रिमूवल. ओके. अभी आपको पता चला है कि कौन से पाथवेज इन्वॉल्व है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में. अभी उस पाथवेज का इन शॉर्ट में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इन दिस वीडियो में. ओके. सो नेक्स्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम. ओके. यहाँ मैंने आपको दिखाया है एक ग्लाइकोलिसिस साइकिल है. जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस. सो दिस ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म, that is converting one glucose molecule into two pyruvate molecule. ओके. ग्लाइकोलिसिस साइकिल में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं. आफ्टर दैट पायरुवेट इज ऑक्सीडेशन. मैंने एरो पे यहाँ पे डाला है पायरुवेट ऑक्सीडेशन. इट मीन्स देन पायरुवेट enters into the mitochondria and after that convert it into the acetyl coenzyme A. ओके. अभी ये क्या है, सेकेंड क्रेप साइकिल है. ओके. सिट्रिक एसिड साइकिल, दैट इज क्रेप साइकिल. द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. अभी सिट्रेट और एटीपीज एक्सेस होने से हमें, अगर मैंने पहले ही बोला था, जब ग्लाइकोलिसिस से 2 पायरुवेट आ गए, 2 पायरुवेट से हमारा एक पायरुवेट की ये साइकिल हुई और दूसरे पायरुवेट की फिर से एक क्रेप साइकिल्स होगी, मतलब 2 क्रेप साइकिल स्टार्ट होंगे. बराबर. अभी यहाँ पे मैंने एक साइकिल क्रेप साइकिल मेंशन किए हैं. उसमें अगर एक्स्ट्रा एटीपीज निकले तो हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. बराबर. और कुछ है जो रिमेन्स वो हम यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं. सो अभी क्या होगा, नेक्स्ट थर्ड स्टेप, एक्सेस एटीपीज और साइट्रेट्स क्या होंगे, ग्लाइकोजेनेसिस होंगे. इट मीन्स द सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज फॉर स्टोरेज इन विच लीवर एंड मसल्स. जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से डायरेक्टली ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होंगे और वो स्टोर रहेंगे लीवर में और मसल्स में, और इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस. एंड अगेन लो ग्लूकोज और हाई ग्लाइकोजन. देखो, हाँ अभी सिमिलर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन है. ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लाइकोजन टू द ग्लूकोज देयर इज कॉल्ड हैज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस.
ओके अगर हमें ग्लूकोज की फिर से ज़रूरत पड़ रही है तो हम जो स्टोरेज किया हुआ ग्लाइकोजन है उसको अगेन यूज करेंगे। तो यूज करते समय ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ही हमें ग्लूकोज मिलेगा, तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलते हैं। ओके और जब ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज से जब भी ग्लाइकोजन बनता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ओके देन ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस इज द फोर्थ वन डायग्राम। फोर्थ वन में क्या है, ग्लाइकोजेनेलोसिस। इट इज द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर्स। नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर्स कौन से रहते हैं, ग्लिसरॉल रहता है, लैक्टेट रहता है, अमाइनो एसिड्स रहते हैं, ये सब नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकॉर्सर्स है। तो इससे भी ही क्या ग्लूकोज सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके सो द प्रोसेस इज कॉल्ड हैज अ ग्लूकोनियोजेनेसिस। आफ्टर ग्लूकोज 6-phosphate बना बराबर ग्लूकोज, इट मीन्स this glucose is also again used to generate the NADPH for the biosynthesis and ribosomes 5-phosphate for the nucleotide synthesis. Okay, this last pathway is called as pentose phosphate pathway, PPP। 5 marks के लिए ये 2-4 बार पूछा गया है, what is the PPP, or write down the short note on PPP. So PPP is a pentose phosphate pathway। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 5 पाथवेज आते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज फर्स्टली glycolysis is started into the cytoplasm. Second one is your Krebs cycle. Third one is the glycogenesis. Fourth one is gluconeogenesis. And last one is your pentose phosphate pathway. So this is all about the introduction of carbohydrate metabolism. तो हमें अभी ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करना है। सो हम नेक्स्ट वीडियो से एक साइकिल स्टडी करेंगे डीपली। सो नाउ यू नो अबाउट दैट व्हाट इज एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लियर थिंग्स कि हमें कुछ एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी के लिए कुछ एनर्जी चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर जो भी हमारे ऑर्गन, ब्रेन, हार्ट, जो भी हमारे ऑर्गन से बॉडी ऑर्गन वो काम कर रहे हैं, वो काम किस की वजह से कर रहे हैं, एनर्जी की वजह से। उनको जो एनर्जी मिल रही है उस वजह से। एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज एटीपीज रिलीज करेगा तब जाके हमें एनर्जी मिलेगी। ओके और ये ग्लूकोज कहाँ से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। तो हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड लेने चाहिए ताकि हमें हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज मिल सके और कुछ ग्लूकोज हम स्टोर कर सके फॉर द फर्दर एक्टिविटी। ओके सो all these things is related to the carbohydrate metabolism. Thank you.